سلام یا حسین، سلام یا حسین۔ مانچسٹر میں محرم الحرام کا سالانہ جلوس پلاٹ فیلڈ پارک سے برآمد ہو کر ومزلو روڈ سے گزر کر ادارہ جعفریہ اسلامک سینٹر 404 موس لین ایسٹ پر اختتام پذیر ہوا۔ جلوس میں علماء کرام نے حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے خاندان کی لازوال قربانیوں کا ذکر کیا، مصائب و فضائل اہل بیت بھی بیان کیے۔ اس موقع پر 92 نیوز سے بات کرتے ہوئے علماء کرام اور لوگوں نے حضرت امام حسین علیہ السلام کی قربانی کا ذکر کرتے ہوئے اس بات پر زور دیا کہ ہمیشہ سچ کا ساتھ دینا چاہیے۔ 1441 ہجری کا عاشورہ محرم کا جلوس مانچسٹر UK کی مین شاہراہ سے لبیک یا حسین، شاہ حسین و حسین کے نعرے لگاتا ہوا، ماتم حسین کرتا ہوا، وقت کے یزیدوں کو للکارتا ہوا گزر رہا ہے۔ ہر چند اہل جوڑ نے چاہا یہ بارہا، ہو جائے مہو یاد شہیدان کربلا، باقی رہے نہ نام زمیں پر حسین کا، لیکن کسی کا زور عزیزو نہ چل سکا، عباس نامور کے لہو سے دھلا ہوا، اب بھی حسینیت کا علم ہے کھلا ہوا۔ آج یہ ہم روڈ پہ آ کر پیغام دے رہے ہیں کہ مظلوم کربلا امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ انسان دنیا میں محترم ہے، وہی انسان محترم ہے جو خدا کے دین کے مطابق اپنی زندگی گزارتا ہے۔ دنیا کو پیغام دے رہے ہیں کہ یاد رکھو کہ جو حسین کو مٹانے والے تو مٹ گئے ہیں، لیکن آج بھی حسین کا پیغام بھی زندہ ہے، حسین بھی زندہ ہے اور رہتی دنیا تک زندہ رہے گا۔ 1400 سال کے بعد یہ آج دیکھ لیں جی ومزلو روڈ مانچسٹر میں جلوس ہے امام حسین علیہ السلام کا، جنہوں نے ایک تاریخ لکھی ہے کہ جدیدیت کا نے ظلم کیا ہے اور حسین یہ زندہ باد ہے۔ آج اسی کی بنا پر جلوس نکلا ہوا ہے۔ آج کا دن امام حسین کی یاد میں ہم مناتے ہیں، اور آج کا دن یزیدیت کے منہ پہ تماچا ہے جو کہ ہمیشہ رہتی دنیا تک رہے گا۔ یہ ایک بڑا اچھا میسیج یہاں سے جا رہا ہے پوری دنیا کے لیے کہ امام حسین کا جو قربانی ہے وہ ہمارے لیے ایک مشعل راہ ہے۔ Prophet Muhammad, peace be upon him, said, I am from Hussein and Hussein is from me. Therefore we will never forget the tragedy of Karbala. Labbaik ya Hussein, salam ya Hussein. یہ جلوس امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے حوالے سے ہر سال کی طرح اس سال بھی پلاٹ فیلڈ پارک سے نکلتا ہے اور ومزلو روڈ سے ہوتا ہے جعفریہ اسلامک سینٹر مانچسٹر میں اختتام پذیر ہوتا ہے۔ حسین ابن علی کی جو قربانی ہے وہ ہمیشہ یاد رکھی جائے گی، اور اسی طرح سے ہر سال یہاں لوگ آتے ہیں اور محلہ کو پرسہ پیش کرتے ہیں اور بتاتے ہیں دنیا والوں کو کہ حسین کل بھی زندہ تھا، حسین آج بھی زندہ ہے۔ آج کشمیری جو جس طرح سے بھارت کے خلاف لڑ رہے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں یہ کربلا کا ہی درس ہے۔ آج اگر حسین کربلا میں شہید نہ ہوتے تو آج کشمیری اس طرح سے اپنی آزادی کے لیے جد و جہد نہ کر رہے ہوتے۔ میرا تعلق اہل سنت سے ہے، اور آج ادھر ہم نے سبیل لگائی ہوئی ہے اپنے مسلمان بھائی اہل تشیع کے لیے۔ سٹی کونسل، پولیس اور رضاکاروں نے مل کر محرم الحرام کے جلوس کے انتظامات مکمل کیے۔ تمام راستوں کو پیغام کربلا کے پوسٹروں سے سجایا گیا تھا۔ اور انتقام شاہ ابرار ابھی باقی ہے، مرحبا عصر کو معلوم نہیں ہے شاید کہ ایک حیدر کرار ابھی باقی ہے۔ ہیومن ویلفیئر ایسوسی ایشن جرمنی کے زیر اہتمام فرینکفرٹ میں محفل مسالمہ کا اہتمام کیا گیا، جس میں انگلینڈ سے مولانا مقبول حسین الوی، منہاج القرآن فرینکفرٹ کے ڈائریکٹر علامہ سید فرحت حسین شاہ نے شرکت کی۔ ہیومن ویلفیئر ایسوسی ایشن جرمنی کے چیئرمین اور تقریب کے میزبان سید اقبال حیدر نے کہا کہ اس محفل مسالمہ کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں شیعہ اور سنی مل کر انسانیت کے علمبردار شہید کربلا کی یاد مناتے ہیں۔ مقررین کا کہنا تھا کہ واقعہ کربلا کا تسلسل آج بھی مقبوضہ کشمیر میں نظر آ رہا ہے۔ جس طرح یزید صفائے ہستی سے مٹ گیا، اسی طرح مودی اور اس کے ہواری بھی نیست و نابود ہو جائیں گے۔ کشمیر کی وادی میں بہنے والا کشمیری مسلمانوں کا خون رنگ لائے گا۔ تقریب میں جرمنی بھر سے مختلف مکاتب فکر کے لوگوں نے بھی شرکت کی۔
वज़ीर ख़ारिजा मखदूम शाह महमूद कुरैशी 3 रोज़ा सरकारी दौरे पर जनीवा पहुँच गए हैं, जहाँ उनका इस्तकबाल वज़ीर आज़म की नुमाइंदा खुसूसी बराए जनीवा मोहतरमा तहमीना जंजुआ, जर्मनी में पाकिस्तान के सफ़ीर अहमद वड़ाइच, अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान की तरफ से कायम मकाम मुस्तकिल मंदूब हुसैन अंदराबी और दीगर हुक्काम ने किया। रिपोर्ट कर रहे हैं राजा हबीब और शाहिद अहमद शाहिद। मकबूजा कश्मीर में भारतीय मुजालिम को उजागर करने के लिए वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी जनीवा पहुँचे तो हवाई अड्डे पर वज़ीर आज़म की नुमाइंदे ख़ुसूसी बराए जनीवा मोहतरमा तहमीना जंजुआ, जर्मनी में पाकिस्तान के सफ़ीर अहमद वड़ाइच, अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान की तरफ से कायम मुकाम मुस्तकिल मंदूब हुसैन अंदराबी और पाकिस्तानी मिशन में तैनात सीनियर हुक्काम ने वज़ीर ख़ारिजा का खैर मकदम किया। जनीवा पहुँचते ही उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अक़वाम मुत्तहिदा के कमिश्नर बराए इंसानी हुकूक के कश्मीर बारे बयान को सराहा। कमिश्नर ने एक स्टेटमेंट दी है, वो स्टेटमेंट बहुत हौसला अफजा है और जो हम कहते आए हैं आज ह्यूमन राइट्स काउंसिल के आगाज़ पर उसका इजहार हुआ है। वज़ीर आज़म की नुमाइंदा ख़ुसूसी बराए जनीवा मोहतरमा तहमीना जंजुआ ने भी अपने बयान में मकबूजा कश्मीर में भारतीय जुल्म बर्बरियत को उजागर किया। इनका कहना था भारतीय मुजालिम की गूंज दुनिया भर में सुनाई दे रही है। इंसानी हुकूक के कमिश्नर ने भी भारत से इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ बंद करने का मुतालबा किया है। We've been raising the issue of the situation of human rights, the terribly deteriorating situation of human rights in Indian occupied Kashmir in Geneva with the membership of the Human Rights Council as well as with the High Commissioner on Human Rights. दूसरी जानिब अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान की मुस्तकिल मंदूब मलिहा लोदी ने अमरीकी मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज के मुजालिम का पर्दा चाक किया और आलमी बरादरी से नोटिस लेने का मुतालबा किया। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी कल जनीवा में ह्यूमन राइट्स काउंसिल के 42वें इजलास में शिरकत और खिताब करेंगे और आलमी मंदूबीन रहनुमाओं को मकबूजा जम्मू और कश्मीर में बसने वाले लाखों निहत्ते कश्मीरियों और इन पर ढाए जाने वाले मुजालिम से आगाह करेंगे। वज़ीर ख़ारिजा इस मुख्तसर दौरे के दौरान इंसानी हुकूक पर काम करने वाली बैनुल अक़वामी तंजीमों के आला ओहदेदारान से भी मिलेंगे। वज़ीर ख़ारिजा की जनीवा में इंसानी हुकूक काउंसिल के इजलास में शिरकत के साथ साथ आलमी इदारा सेहत WHO और OIC के नुमाइंदगान से भी मुलाकातें तय हैं। शिकागो में भारतीय काउंसलेट के सामने मकबूजा कश्मीर में भारतीय मजालिम के खिलाफ पाकिस्तानी और दीगर कम्युनिटीज़ ने भरपूर एहतजाजी मुजाहरा किया, जिसमें यहूदी, मसीही और सिख रहनुमाओं की बड़ी तादाद ने शिरकत की। अमेरिका से रिपोर्ट करेंगे नदीम मंजूर सुलहरी। एहतजाजी मुजाहरे में भारतीय कम्युनिटी के रहनुमाओं ने भी खसूसी तौर पर शिरकत की। मुकर्रीन ने अपने खिताब में कहा कि भारत ने मकबूजा कश्मीर में गुज़श्ता 1 माह से कर्फ्यू लगा रखा है। बीमारों के लिए अस्पतालों के दरवाजे बंद हैं। I'm from India, Hyderabad, but I left that my beloved country a long time ago, like in 1970. But I am in a good touch with the political affairs that are happening in India. And it is my desire that Kashmiri people get their freedom, and so they deserve that. Plus, I am also hearing about the Indian Army brutality and the crimes they are committing against especially the youth of Kashmir, which I think is sad. मुकर्रीन का कहना था मकबूजा कश्मीर करबला का मंजर पेश कर रहा है। भारतीय इंतहा पसंद तंजीम RSS के गुंडे और दहशतगर्द फौजी वर्दियां पहनकर कश्मीरियों की नस्लकुशी कर रहे हैं। The situation is really bad in Kashmir right now. We cannot talk to our relatives and friends. It's really grave situation there, and a lot of people are caged. They're not allowed to come out. They're under curfew for more than a month now. And you know, we should, as on humanitarian grounds, everybody should work towards the freedom of Kashmir. दुनिया के आलमी इदारे ख़ुसूसन अक़वाम मुत्तहिदा, OIC, यूरोपियन यूनियन और इंसानी हकूक़ की तंजीमें खामोश तमाशाई जैसा किरदार अदा कर रही हैं। मुकर्रीन ने कश्मीर इशू पर पाकिस्तानी हुकूमत की जानिब से उठाए गए इक़दामात को खुशाइंद करार देते हुए कहा कि पाकिस्तान ने वो कर दिखाया है जिसकी कश्मीरी अवाम तमन्ना करते थे। To express solidarity with people of Kashmir and condemn massive human rights violation by the Indian government. We are protesting here again today, and we want to show the solidarity with the people of Kashmir. आज का दिन हमेशा की तरह बहुत इम्पोर्टेंट दिन है। आज हम सारे मिल के माशाल्लाह से एक कश्मीर कॉज के लिए इकट्ठे हुए हैं।
हमें चाहिए, हमारे दोस्तों को चाहिए कि जैसे भी, जिस तरह से भी इस कास में हमारी तरफ से कोई मुआवनत हो सकती है तो हम बढ़ चढ़ के उसमें हिस्सा लें। यहूदी और मसीही मुकर्रीन का कहना था कि कश्मीर में भारत के जालमाना इक़दामात की हमायत नहीं की जा सकती। उन्होंने अमरीकी सदर ट्रंप और अक़वाम मुत्तहिदा से अपील की कि वो इस दरीना मसले को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल कराने के लिए अपना किरदार अदा करें। To stand in solidarity with those who are being oppressed. It's very important for us as people of faith and people of goodwill to come together and do everything we can to raise our voices. मुजाहिरे से कश्मीरी लीडर जावेद राठौर, अरशाद खान, रेवरेंड डॉक्टर हीथ ब्राउन, प्रोफेसर स्कॉट अलेक्जेंडर, यहूदी रबी ब्रेंट रोजन, अमाम मुस्तफ़ा, सबा खान, रफीदा हमीद समेत दीगर मुकर्रीन ने भी खिताब किया। मकबूजा कश्मीर में भारतीय झूठ हर रोज़ बेनकाब होने लगा है। पैलेट गन का निशाना बनने वाले तालिब इल्म इसरार अहमद के ख़ानदान ने मोदी हुकूमत के बयान पर सवाल उठाते हुए पूछ लिया कि क्या पत्थर ऐसा कर सकता है। भारतीय फोर्सेस की पैलेट्स का शिकार 11वीं जमात का तालिब इल्म असरार अहमद, जिसकी शहादत की खबर आलमी मीडिया पर आते ही भारत बौखला उठा। भारतीय लेफ्टिनेंट जनरल कमलजीत सिंह ढिल्लू ने दावा किया कि असरार अहमद की शहादत पत्थर लगने से हुई। I will amplify on this. Asrar Ahmad Khan, the boy 18 to 19 years of age of Illahibad 90 feet road, who was hit by a stone on 6th of August and admitted in Sora, he has come to his death today. लेकिन हकायक इससे बिल्कुल मुख्तलिफ हैं, जिसे न सिर्फ भारत का अपना मीडिया पहले सामने लाया बल्कि अब आलमी मीडिया ने भी पर्दा चाक कर दिया है। अल जजीरा की रिपोर्ट में शहीद असरार अहमद के वालिद का इंटरव्यू शामिल किया गया है, जिनका कहना है कि असरार उस रोज ग्राउंड में बैठा कैरम खेल रहा था जब उन्होंने उसके सर पर गोली मारी। असरार के वालिद अपने बेटे की तस्वीर दिखाते हैं जिसमें उसके चेहरे पर जाबजा पैलेट्स लगी हुई हैं। वो सवाल करते हैं कि क्या पत्थर ऐसा कर सकते हैं। असरार अहमद की मेडिकल रिपोर्ट्स भी भारतीय दावों की नफी करती हैं, जिसमें वाज़े बताया गया कि वो पैलेट लगने से जख्मी हुआ था, जबकि उसके सर के एक्सरे में भी पैलेट्स वाज़े नजर आ रही हैं। असरार अहमद तकरीबन 1 माह तक जिंदगी और मौत की जंग लड़ता रहा। अस्पताल में उसे जान बचाने वाली मशीनों पर रखा गया था। जुल्म की दास्तां यहीं खत्म न हुई। दरिंदा सिफ्त भारतीय फोर्सेज असरार अहमद की शहादत पर मजीद खौफजदा हो गई। उसे अपने आबाई कब्रिस्तान में तदफीन की भी इजाजत न दी। पुलिस यहाँ जनाजा तक नहीं पढ़ने देती है। मैं क्या बोल सकता हूँ। बहादुर कश्मीरी अपने बेटे को कंधा देने बाहर निकल आए। आजादी के नारों में असरार अहमद को सपुर्दे खाक किया गया। यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता प्रोफेसर रफ़ीक अख्तर ने लंदन में तसव्वुफ़ और सूफ़ीज़्म तरीक़ा तालीम और दीगर दीनी और दुनियावी मसाइल पर लेक्चर दिया। इस मौके पर लंदन और गिरदोनवाह से कसीर तादाद में मर्दों और ख़वातीन ने शिरकत की। मज़ीद तफ़सीलात ब्यूरो चीफ UK ग़ुलाम हुसैन अवान की इस रिपोर्ट में। लंदन के मुकामी होटल में मारूफ डॉक्टर नीलम फवाद ने एक फ़िक्री नशिस्त पर मबनी तकरीब का एहतमाम किया, जिसमें पाकिस्तान के बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता प्रोफेसर रफ़ीक अख्तर को ख़ुसूसी तौर पर तसव्वुफ़ और सूफ़ी तरीक़ा तालीम पर लेक्चर के लिए मदऊ किया गया। तकरीब में लंदन और गिरदोनवाह से प्रोफेसर रफ़ीक अख्तर को सुनने लोगों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। डॉक्टर नीलम फवाद ने हाज़रीन को बताया कि प्रोफेसर रफ़ीक अख्तर बरसों से तसव्वुफ़ और सूफ़ीज़्म पर दुनिया भर में लेक्चर्स दे रहे हैं और जहाँ भी मुसलमानों की फ़िक्री तामीर की बात होती है वहाँ प्रोफेसर रफ़ीक अख्तर मिशले रात दिखाई देते हैं। प्रोफेसर रफ़ीक अख्तर को कौन नहीं जानता, जिनका तसव्वुफ़ उठना बैठना खाना पीना है, जो लोगों को समझाते हैं कि कैसे दिलों को और अपनी सांसों को अल्लाह के रास्ते में जोड़ना है। और माशाल्लाह ये पौधा लगाया है, देखिए इसको परवान चढ़ते हुए। I really enjoyed the presentation and the lecture from Professor Akhtar. It was a real pleasure and an honor to be here amongst all these people. प्रोफेसर रफ़ीक अख्तर जो हैं ये इस्लाम और मज़हब को जनरली आसान करके पेश करते हैं और ये किसी दूसरे मज़हब की मुखालफत नहीं करते। खुदा करे ऐसे लोग कुछ और पैदा हो जाएं जो सही इस्लाम की
ہمیں تعلیم دیں. प्रोफेसर साहब माशाल्लाह फुल ऑफ नॉलेज हैं और माशाल्लाह इनकी मेमोरी इतनी है कि मुझे बयान से बाहर है. उनको इतनी बातें याद रहती हैं और उनका लेक्चर जो है वो हम उनसे बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हासिल होते हैं और उनकी जो तस्बीहात हैं वो हमें बहुत फ़ायदा देती हैं. बहुत अच्छा बताते हैं, बड़े अच्छे तरीके से रूहानियत पे जिस तरह से वो आपके दिलों को छूती हैं वो बातें, और बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा है उनको नए दौर में, और जिस तरह से उनकी एग्जांपल्स देकर जिस तरीके से बताते हैं आप हकीकत में लर्न करते हैं. दुनिया तरस रही है, हिदायत के लिए तड़प रही है. जिस तरह उन्होंने एक्सप्लेन किया, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला उनके इल्म और बसीरत को और वाह करे. ईमान जो खुशक हुआ था उसको पानी मिला है. बेसिकली इस्लाम है क्या चीज़ जो कि हम ढूंढ रहे कहीं और, तो जो प्रोफेसर साहब ने उसके बारे में बताया उससे वाकई हम बहुत मुतासर हुए. I think this is a great get together to learn a bit more about the teachings, and I believe it's such an inspiration what the professor has done, and you can see behind me there's so many people to appreciate his work. इस मौके पर हाजरीन से खिताब करते हुए प्रोफेसर रफीक अख्तर ने कहा कि तसव्वुफ ऐन इस्लामी तर्ज फिक्र है और सदियों से सूफिया लोगों को तालीम से आरास्ता करते आ रहे हैं. पूरे कद से जो खड़ा हूँ तो ये तेरा है करम. इनका कहना था कि जितनी पुख्तगी और फरासत सूफीज़म में दिखाई देती है इतनी दीगर तालीमात में नजर नहीं आती. लिहाजा मौजूदा तेज रफ्तार और माजिद परस्ती के दौर में तसव्वुफ के हसूल के लिए सूफियान दीन की तालीमात को रोज़मर्रा के मामूलात में अगर शामिल कर लिया जाए तो बेहतरीन नताइज बरामद हो सकते हैं. तकरीब के इख्तितामी मरहले में प्रोफेसर रफीक अख्तर ने हॉल में मौजूद लोगों के सवालों के जवाबात भी दिए और दियारे गैर में नई नस्ल में तसव्वुफ का रास्ता अख्तियार करते हुए सूफी तरीक़त तालीम को आम करने और नौजवानों में तजस्सुस को मुस्बत अंदाज में परवान चढ़ाने के अमल पर जोर दिया. बरतानिया भर से प्रोफेसर रफीक अख्तर का लेक्चर सुनने के लिए आने वालों का कहना था कि अब माशरे में तबकाती तकसीम और फ़िरका वारियत के खात्मे के लिए ज़रूरी है कि तसव्वुफ और सूफीज़म की असल रूह को शिनाख्त किया जाए. साथी रिपोर्टर वसीम काज़मी के साथ गुलाम सहनवान, 92 न्यूज़, लंदन. जर्मनी के शहर हॉगन में दावत इस्लामी और पाकिस्तानी कम्युनिटी के ताउन से चर्च की जगह बनने वाली मस्जिद अल्लाह अकबर की सदाओं से गूंज उठी. पहली नमाज की इमामत दावत इस्लामी के रुकन शूरा ने की. अजान की पुरकैफ आवाज़ ने नमाजियों पर रिक्कत तारी कर दी. खूबसूरत मस्जिद में पहली नमाज पढ़ने के लिए यूरोप भर से ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने शिरकत की. तफसीलात के लिए देखिए असगर मिर्ज़ा की रिपोर्ट. अजान की ये पुरकैफ आवाज़ इस मकाम पर कुछ माह पहले भी सुनाई दी थी, लेकिन तब और अब में खासा फ़र्क है. जर्मनी के शहर हॉगन में कुछ माह पहले ये मकाम एक चर्च था जिसे तबलीग कुरान और सुन्नत की आलमगीर गैर सियासी तहरीक दावत इस्लामी ने पाकिस्तानी कम्युनिटी के तावन से खरीद कर मस्जिद में तब्दील कर दिया और आज ये मकाम एक मस्जिद है जहाँ अल्लाह अकबर की सदा पूरी शान और शौकत से गूंज रही है. मौजूद हैं दावत इस्लामी के रुकन शुरा हाजी अब्दुल हबीब अतारी, जिनकी पुरसोज अजान ने मस्जिद में मौजूद नमाजियों का ईमान ताज़ा कर दिया है. बाईस अप्रैल 2019 में यहाँ पहली अजान दी गई और आज इस मस्जिद में पहली नमाज अदा की गई, जिसकी इमामत की सआदत रुकन शुरा सैयद इब्राहिम बापू ने हासिल की. नमाज के बाद पुरकैफ दुआ ने नमाजियों पर रिक्कत तारी कर दी. तेरा करम है मौला, हमारा रुपया और पैसा
दावत इस्लामी के रुकन शूरा हाजी अब्दुल हबीब बतारी ने इस मौके पर दुआ मांगते हुए कहा कि जिन मुसलमानों ने इस मस्जिद की तामीर के लिए साथ दिया, हिस्सा लिया, अल्लाह उन्हें जज़ाए कसीर अता फरमाए। बाद में उन्होंने इस प्रोजेक्ट के हवाले से तफसीलात से भी आगाह किया। ये गैर मुस्लिमों की इबादत गाह थी, ये जगह परचेज कर ली गई है। आज यहाँ पहली अजान हुई है, पहली नमाज हुई है और अल्हम्दुलिल्लाह कसीर तादाद में आशिकान रसूल न सिर्फ जर्मनी से, यूके से, यूरोप के मुख्तलिफ मुल्कों से, पाकिस्तान से एक बड़ी तादाद में बिजनेस कम्युनिटी के लोग आए हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखने वाले, राइस एसोसिएशन से ताल्लुक़ रखने वाले मुख्तलिफ डिपार्टमेंट के लोग आए हैं और आज वो बहुत खुश है कि अपनी आंखों से उन्होंने ये मंजर देखा है। अल्लाह ने ये दिन हमें दिखाया है। मैं दुनिया भर के मुसलमानों से, आशिकान रसूल से अर्ज़ करना चाहता हूँ, आप भी दावत इस्लामी के साथ ताउन कीजिए। हमें कीनिया से मुसलमानों ने माशाअल्लाह सपोर्ट किया है। नमाज के बाद शुरका ने नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में दुरूद इस्लाम के नजराने भी पेश किए। जर्मनी के अलावा इंग्लैंड, फ्रांस, हॉलैंड, डेनमार्क से बड़ी तादाद में मुसलमान पहली नमाज ज़ोहर की अदायगी के लिए हॉगन पहुंचे। इस मौके पर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का ईमानी जोशो वलवला काबिल दीद था। ब्रेडफोर्ड में सुपर फ्लाईवेट वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में पाकिस्तानी नियाद बरतानवी बॉक्सर तासुफ खान ने मैक्सिकन बॉक्सर को हराकर जीत कश्मीरियों के नाम कर दी है। तफसीलात बता रहे हैं वकार बाबर मुगल। पाकिस्तानी दुनिया में कहीं भी और किसी भी शोबे से वाबस्ता हूँ, अपने नाम का लोहा जरूर मनवा कर मुल्क का नाम रोशन करते हैं। बरतानिया में बॉक्सिंग के मैदान में तासुफ खान ने वर्ल्ड सुपर फ्लाईवेट चैंपियनशिप में अपने मैक्सिकन मुद्दे मुकाबिल अल्बर्टो रियोस को 5वें राउंड में ही टेक्निकल बुनियादों पर नॉकआउट कर दिया। तासुफ खान ने अपनी जीत को मजलूम कश्मीरियों का नाम किया है। इस मौके पर उनका कहना था कि पाकिस्तानी दुनिया के हर मैदान में कश्मीरियों के लिए लड़ने को तैयार हैं। Great fight tonight again. I think we got the victory and mashallah we came away with no injuries and we got the victory. Thanks to Monarch Promotions and CEO Prince Stanley Williams for guiding us to this event and making it such an historic event in St George's Hall. I'd like to dedicate my fight to peace around the world and stand up for solidarity for particularly the Kashmiris out there, and we want to similar like this event, hopefully sport and events like this can bring people together and promote peace around the world. इस मौके पर दीगर अफराद का कहना था कि ब्रेडफोर्ड में ऐसे इवेंट का इनेकाद खुश आइंद है। पाकिस्तानी शायकीन जिंदा दिल हैं, हार जीत पर सबको बराबर की दाद देते हैं। कि आज उनकी जो आज अपने बाउट थी उनमें इन्होंने बहुत कामयाबी हासिल की। ये हमारे लिए, पाकिस्तान के लिए ये बहुत बड़ी फ़ख्रिया बात है और ये बात उन्होंने की है कि ये आज की जो फाइट है ये उन्होंने डेडिकेट किया है कश्मीरी लोगों के लिए। I feel great and I feel so honored because it's not easy all the way from Nigeria to Bradford to come and fight here, and I see women fight officially. So I'm so happy, and I believe maybe the next couple of years to come back to Bradford to have another show like this. It's a very great show. I'm so happy. I thank the people of Bradford for the hospitality, and this is the hometown of Taasif Khan. So we thought of bringing the title fight down here so that the fans over here can support him before he starts his campaign. First of all, I want to give a big thanks to everybody that has come to support this show. I think this is the first time something like this has happened here. Very strong fighter. We did proud people of Bradford. We're so happy. He's one of ours and he's one of everybody's. He's not just a Muslim fighter, he stands for English fighters, he stands for everybody. So really great to see Taasif winning another fight, retaining his World Championship titles. It's great to have a Bradfordian do so well. He cares so much about the city and does so much here, so it's great to celebrate with him tonight. Thank you. इस मौके पर उन्होंने पाकिस्तान का दुनिया भर में नाम रोशन करने के अज़म का इजहार किया। वकार बाबर मुगल, 92 न्यूज़, ब्रेडफोर्ड। और इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए 92 न्यूज़ UK।